نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم اسم جلالہ میں دیکھنے والے ہیں کہ اللہ کے اسم میں کب ہم اللہ کے اسم کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اس بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے لام، لفظ اللہ میں تب موٹا پڑھا جاتا ہے جب لفظ اللہ سے پہلے ملنے والے حرف پر اللہ کے اسم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے اوپر شد ہے۔ جب ہم پچھلے حرف کو لام مشدد کے ساتھ جب ہم پکڑتے ہیں تو یہ لام پر پڑھا جاتا ہے۔ کیا آپ کا ہوتا ہے؟ یہ لام پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لام اسم جلالہ اپنے سے پہلے حرکت کے تابع ہوتا ہے، یعنی ما قبل حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ لام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں لام ہے وہ مشدد ہوتی ہے۔ لام مشدد اپنے سے پہلے جو حرکت ہے اس کے تابع ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ مشدد حرف اپنے پچھلے متحرک سے مل کر چلتا ہے۔ مشدد حرف پورے قرآن مجید میں جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پچھلے متحرک سے مل کر چلتا ہے۔ پچھلے حرف کی جب ہم دیکھیں گے اگر اس کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے یا ضمہ یعنی پیش ہے، زبر ہے یا پیش ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں لام جلالہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ اب یہ دیکھیں ہو جو ہے اس کو ہم نے لائٹ پڑھا ہے۔ اب لام مشدد کو ہم نے پچھلے لام کے زبر کے مطابق اس کو الا اللہ، اب اس لیے یہ لام جلالہ پر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے لام پر زبر ہے۔ الا اللہ، الا اللہ۔ اب یہ ہو جو ہے وہ لائٹ پڑھا جائے، صرف لام جلالہ پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں جو لام جلالہ ہے اس کو پر جب پڑھیں گے تو پچھلے حرف پر دیکھیں گے زبر ہے یا پیش ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے دیکھا لام کے اوپر پیش ہے، لام جلالہ پر پڑھا گیا کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور جو مشدد حرف ہوتا ہے پچھلے متحرک سے مل کر چلتا ہے۔ اب پچھلے حرف پر ہم نے دیکھا پیش ہے تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھ لیا۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ جو اخلاص ہے تو اس میں جب ہم دو جگہ پر دیکھتے ہیں اللہ الصمد، تو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ الصمد، اگر اللہ الصمد، اب یہ دیکھیں ہم نے خود قل هو اللہ احد، واو کے اوپر زبر ہے، لام جلالہ پر پڑھا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ہاں کو لائٹ پڑھا ہے، صاد کو پر کر کے پڑھا ہے، میم کو پھر لائٹ پڑھا ہے، دال کو کلکلا کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر لام مشدد بھی بے شک ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں دیکھ لیتے ہیں ہم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہ دیکھیں لام مشدد ہے لیکن یہ پر نہیں پڑھا گیا، پیچھے پیش ہے، سب کچھ وہی، لیکن ہم نے کہاں پر پر پڑھنا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں لام مشدد تب پر پڑھا جاتا ہے جب پیچھے زبر یا پیش ہو۔ یہاں پر لام مشدد ہے، پیچھے پیش بھی ہے، لیکن یہاں پر لام آیت نمبر 4 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہاں پر لام ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لائٹ پڑھا ہے۔ جب بھی اللہ سبحانہ، اب دیکھیں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اب یہاں پر ہم نے کیوں نہیں پڑھا پر کر کے؟ کیونکہ پیچھے میم کے نیچے زیر ہے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے
तो लाम जलाला पुर नहीं पढ़ा गया। हम जब देखते हैं लाम से पहले क्या है, वाव के ऊपर ज़बर है। अब यहाँ पर एक आयत मुकम्मल हो गई। आगे हमने देखा हमज़ा वसल अपने से पहले ज़बर ले लेता है। हमने देखा अलिफ लाम है तो हमज़ा ने ज़बर ले ली, लाम जलाला पुर पढ़ा गया। बिस्मिल्लाह में पुर नहीं पढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस्म से पहले ज़बर या पेश होगी, लाम जलाला पुर पढ़ा जाएगा, अल्लाह पढ़ा जाएगा। इसी तरह आयतल कुर्सी में देख लें, किसी जगह पर भी देख लें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, लाम जलाला पुर पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी लाम जलाला पुर पढ़ा जा रहा है। अब हम देख लेते हैं दुरूद इब्राहिम को। अब यहाँ पर भी सेम वही कवायद लगेंगे, वही रूल्स लगेंगे। जो हम अहकामात सीखे हैं सारे इसी पर अप्लाई होंगे और दुरूद इब्राहिम पढ़ते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। लाम जलाला पुर पढ़ी जाएगी, मीम मुशद्दद को अच्छे से करीब करेंगे, जहाँ जहाँ तशदीद है तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का ख़ास ख्याल रखेंगे, क्योंकि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में अगर कमी करते हैं तो वो लहने चली में आती है, तो इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला। अब ये देखें स्वाद को लाम मुशद्दद के साथ पकड़े, सल्ले नहीं पड़ा, लाम के साथ या नहीं लगाया, ठीक है। सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आइन पढ़ा है, हमज़ा नहीं पढ़ा। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, ये देखें अलिफ मद्दा का ख़ास ख्याल हर जगह पर रख रहे हैं। अलिफ मद्दा की कमी लहने चली में आ जाती है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। लहने चली का मतलब होता है कबीरा गुनाह, लहने चली कबीरा गुनाह, क्योंकि सिस्टर्स कहते हैं लहने चली के साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया कर रहे हैं। लहने चली का मतलब होता है कबीरा गुनाह में आ जाएगी अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में जानबूझकर गलती की। अगर इल्म नहीं हो पाता, बिलफर्ज किसी को इल्म नहीं है और गलती से हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से माफ़ी है, लेकिन जानबूझकर हम इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते, जानबूझकर ऐसा नहीं पढ़ सकते। जो अलिफ सगीरा है उसको 2 अलिफ के बराबर खींचना है, अलिफ मद्दा है 2 अलिफ के बराबर खींचना है। इब्राहीम, ये देखें या मद्दा है तो उसको या मद्दा को 2 अलिफ के बराबर हमने टाइम देना है, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल हमने रखना है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, अब ये इदगाम का कायदा, अब यह इदगाम का, मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला, कमा बारक, काफ हमस, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने क्या करना है, अलिफ मद्दा का, वाव मद्दा का, इसका ख्याल रखना है, मुशद्दद हर्फ का ख्याल रखना है, इदगाम का ख्याल रखना है, इख्फा का, इख्फाए हकीकी का ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों का, वरना हमारी दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसमें गलती होगी तो कबूल, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करे, कबूल नहीं हो पाएगा। हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने क्या किया है,
हर चीज़ का ख्याल रखा है। 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है तो उसको खींच कर पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा बारिक अला आली कमा सल्लैता सल्लैता। अब ये देखें सल्लैता मा या लीन बन रहा है सल, क्योंकि हमने साद के ज़बर को लाम शद्दत के साथ पकड़ा। सल्लै लैता। तो जो हमने पहले दिन सारे अहकामात सीखे सारे इस पर अप्लाई हो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा इसको हमने ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लाम इसमें जलाला से कबल अगर कसरा ज़ेर आ जाए तो लाम इसमें जलाला बारीक पढ़ा जाएगा। याद रखें, जब अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हर्फ पर अगर ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक, ज़ेर आ जाए सॉरी, अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जब अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हर्फ पर अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। जब अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा नहीं जाएगा तो किस तरह हम पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तो इसमें लाम का लाम अल्लाह सुब्हान तआला, इसमें जो लाम पढ़ा जा रहा है मोटा नहीं पढ़ा जा रहा, बारीक पढ़ा जा रहा है। अब देखें किसके ऊपर? मीम के नीचे ज़ेर होने की वजह से, मीम के नीचे ज़ेर होने की वजह से उसके हमने हरकत को देखा, जिसकी वजह से हमने इसको बारीक पढ़ा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, अब ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि लाम के नीचे ज़ेर आ रही है, लाम के नीचे ज़ेर आ रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हमने यहाँ पर क्यों ऐसे पढ़ा? क्योंकि बा के नीचे ज़ेर है। और हमने पीछे भी देखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमने इसको क्यों पढ़ा? लाम के नीचे ज़ेर है। ये दो मिसालें हमारे पास है, ज़ेर ज़बर पेश। अब ये देखिए उल्टा पेश ज़बर, उल्टी ज़ेर और उल्टा पेश भी हैं और इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इनकी कोई मिसाल। यहाँ ज़ेर ज़बर और पेश है, ठीक है। इससे मुराद ये नहीं है कि उल्टा ज़बर, उल्टी ज़ेर और उल्टा पेश, इसकी कोई भी किसी जगह पर आपको मिसाल नहीं मिलेगी। सिर्फ ये मिलेगी या ज़बर ज़ेर या पेश, ये तीन मिसालें मिलेंगी और कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। हमने देखना है इसको। अब ये जिस तरह आयतल कुर्सी में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सुब्हान अल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोड़ी हो। मदूद को देखा, हमने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का ख्याल रखा और मद फ़रई का भी ख्याल रखा, हा और हा का भी ख्याल रखा, लाम जलाला का भी ख्याल रखा। हर चीज़ को हमने हय्युल क़य्यूम, आपने देखा हुवल हय्युल, हमने मुशद्दद को भी देखा कि मुशद्दद को भी हमने देखा। जब हमने हमज़ा को साकिन किया उसको भी झटका दिया। हर चीज़ जो हम पूरे अहकामात सीख चुके, सब चीज़ इस पर अप्लाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ दी है, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हमने सब वही शेप जो पहले दिन हरूफ तहजी में कही थी, पूरे कुरान मजीद की बुनियाद वही शेप, वही कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने पूरे फोकस से पूरी तवज्जो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप सब ने तवज्जो देनी है। हरूफुल हिजा, हरूफुल मुफरदात कह लें, हरूफुल हिजा कह लें, हरूफुल मुरक्कबात कह लें, तो ये क्या है, हर्फ तहज्जी के नाम है। पूरा फोकस हरूफ तहज्जी को दीजिएगा, क्योंकि जब हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे होते हैं सब चीज़ें उसी के साथ आ जाती हैं, सब चीज़ें। और वही शेप, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारी वही शेप। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ को इंशाल्लाह बार बार दोहराना है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को उलट पुलट करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।